ग्रेट. सो सॉरी, थोडासा आज उशीर झाले 1 मिनिटाने. आम्ही विचार करत होतो की अजून 1-2 टीचर जॉईन होतील म्हणून. बट ग्रेट, आय थिंक वी आर गुड टू गो. शिवाजी सर सुद्धा जॉईन झालेले आहेत आजच्या सेशनसाठी. But before that, welcome back to again the next webinar on making toys from trash. Uh, आता एवढे दिवस we had a lot of different webinars. We had webinars to understand our actions. How can we be in our classrooms? Teacher perspective करणं, student perspective करणं. But as आपण we are going to be learning something more practical of how can we use or how can we make toys that can be useful in the classroom. बऱ्याच वेळा असं होतं की टॉयज किंवा आपले जे एक्सपेरिमेंटचे ज्या इक्विपमेंट्स असतात ते आर क्वाईट एक्सपेन्सिव्ह ॲट टाइम्स, बट देन द बेस्ट इज टू बी मेकिंग अ लॉट ऑफ टॉयज, अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स आउट ऑफ ट्रॅश. आणि आज शिवाजी सर आपल्याला तेच सांगणार आहेत. विल बी हेल्पिंग अस विथ अ फ्यू आयडियाज ऑफ हाऊ वी कॅन डू दॅट. बिफोर दॅट, लेट मी इंट्रोड्यूस SR Dalvi Foundation. SR Dalvi Foundation is a foundation for teachers. It's a not-for-profit organization and NGO that works for teachers, teacher welfare आणि teacher empowerment साठी. We are based, आमचं head office आहे मुंबईत, but we work across the state of Maharashtra. The only motive behind the entire NGO working is to support teachers, basically the respect. A lot of times we find that engineers and doctors आर रेकग्नाइज्ड, बट टीचर्स कुठे ना कुठे त्यांना तेवढं लाईमलाईट मध्ये ते येत नाही. आणि त्यासाठी दिस द कोर मोटिव्ह ऑफ द एनजीओ, आमचे जे फाउंडर्स आहेत सीता दळवी मॅम आणि रामचंद्र दळवी सर, तर देअर एंटायर मोटिव्ह हॅज ओनली बीन टू रिस्पेक्ट, to acknowledge the efforts that a teacher brings on to this, I mean, for their children. In every classroom, as the future of our country, the future of the world entirely lies in your classroom, and that's why the foundation entirely works on that perspective of respecting and acknowledging the efforts of teachers. So this being a little about what SR Dalvi Foundation does, we organize events, we organize webinars, workshops, trainings. We have award functions for teachers. And we have a digital platform called Teacher Talk app, which is a digital platform for teachers. It's a digital community, and we would love to have all of y'all on board. तर नक्कीच by the end of this session आम्ही तेही post करू ॲपचे लिंक. तुम्ही ते ॲप डाउनलोड करू शकता, and you can post what you do in your classroom. तुम्ही वेगवेगळ्या लेसन प्लॅन्स तुमचे तुम्ही पोस्ट करू शकता. इट इज बेसिकली अ कम्युनिटी जस्ट ऑफ टीचर्स. You learn, you spread all that you have as a teacher, and that's all the community does. It supports you. Apart from that, we'll be having a district level award function coming up very soon. ज्याचे डिटेल्स ही आम्ही ऍपवर अपलोड करू, तर नक्कीच तुम्ही तेही पहा. And stay updated, nominate yourself, nominate teachers that you know will benefit through it, and we would love to recognize all of you all. तर over to Shivaji sir. Without taking much time, I would request Shivaji sir to take it forward. And I'm sure we're all looking forward to this amazing session. Hands-on activities to learn more की आपण अजून काय करू शकतो आपल्या क्लासरूम मध्ये to make our classrooms quite active and engaging. And hence we call this session also a part of NEP 2020, कारण इथे आपल्या engagement levels of our children are going to be really high when you use such kinds of toys or such kind of experiments in your classroom. So namaskar Shivaji sir, and over to you. नमस्कार. व्हिडिओ दिसते? सर एकच सेकंड. येस, बोला. सॉरी. येस. ओके. आवाज आणि क्लॅरिटी दिसते व्यवस्थित आहे सगळी? तुमचा आवाज खूपच लो आहे सर. थोडंसं जोरात बोलू शकता का? येस. आता आवाज येतोय ना? हा, आवाज येत आहे सर. ओके, थँक्यू. नमस्कार. मॅडमनी सांगितलं तसं
आज आपण वेगळ्या पद्धतीचे एक्सपेरिमेंट पाहणार आहोत आणि एक्सपेरिमेंटच्या मदतीने आपल्याला क्लासरूम मध्ये इंटरेस्टिंग आणि इनोव्हेटिव्ह काही आयडियाज घेऊन जाता येतील का, आणि आपला क्लास जो आहे तो थोडा वेगळा आणि मुलांना जे समजायला पाहिजे. फक्त आपण मुलांचे जे काही मार्क्स आहेत किंवा त्यांना मार्क पुरतच आपण अभ्यासक्रम देतो आणि त्यानंतर तेवढंच ह्याच्यात मर्यादित राहतं का? तर असं न करता जर टॉयच्या मदतीने जर जास्त शिकवलं की तर ते लक्षात राहतं आणि ते लॉंग टर्म राहतं. तर अशाच बेसिसवरती आपण आजचे काही टॉयज पाहणार आहोत. सिंपल सिंपल गोष्टीतनं बनवलेले हे एक्सपेरिमेंट आहेत, ज्याला आम्ही खेळणी म्हणतो. आणि खेळणी का, तर मुलांना खेळायला आवडतं आणि म्हणून हे खेळणी आज आपण काही पाहणार आहोत. तुम्हाला काही समजलं नसेल तर प्लीज विचारू शकताय, मेसेज करू शकताय. फारच चांगली एक सर, वेबसाईट एक आहे. खूप सॉरी तुम्हाला कट करते. एक छोटासा रिक्वेस्ट, आपण मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश म्हणजे थोडंसं इफ वी कॅन मॉड्युलेट बिटवीन ऑल थ्री लँग्वेजेस, कारण आपल्याकडे काही टीचर्स आहेत हु आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र. त्यामुळे म्हणजे हिंदी, इंग्लिश आणि मराठीच्या मध्ये आपण मॉड्युलेट करू शकतो. या थँक्यू सो डेफिनेटली. मच. या थैंक यू सो मच. सो हम लोग तीनों लैंग्वेज में लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैम ने बोला है तो हम लैंग्वेज भी देखेंगे. बट ये टॉयज की ना ओन खुद की एक लैंग्वेज, तो हमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी कि हम जब दिखाएंगे ना आप लोगों को तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे. बट फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा अगर ये सब चीजें रहेंगे तो दैट बहुत अच्छा रहेगा. सो हमारा एक वेबसाइट है, आप लोग ने काफी देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए. वेबसाइट का नाम है arvindguptatoys.com. ये वेबसाइट के ऊपर 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी बुक्स है अलग अलग लैंग्वेज में. और ये जो अरविंद गुप्ता जी हैं, इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है. और गुप्ता जी बहुत सालों से ये मतलब ये इस फील्ड में है, और काफी सर ने अलग अलग टाइप के टॉयज बुक्स लिखे गए. तो ये सभी मटेरियल अगर आप लोगों को देखना है तो आप प्लीज इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, arvindguptatoys.com. वेरी पॉपुलर वेबसाइट. बहुत ही लोगों ने इसे देखा है और काफी इसका रीच जो है बहुत लोगों तक गया है और बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं. तो आप भी देखिए, और बहुत सारे सिंपल सिंपल मेथड दिए. सिर्फ टॉयज कैसे बनाना है, उसके पीछे का साइंस सिद्धांत ये हम लोगों को देखना है, हम लोगों को खोजना है. तो इसलिए टॉयज बनाने का ज्यादा से ज्यादा और सिंपल तरीका इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा. तो मैं जिस स्कूल में हूँ उस स्कूल का नाम है DLR. ओके, ये सूस रोड में है. और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारा स्कूल में बहुत सारे ऐसे अलग अलग गतिविधियां होती है, और हम बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्टिविटी बनाते हैं. और सिंपल तरीके से एक्वापोनिक्स, हाइड्रोलिक और बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट, ऐसे चीजें वहां पर इस्तेमाल करके बच्चे एम है या हमारा मोटिव है. तो ये जो डे टू डे लाइफ है या ये सभी जो हमारी अलग अलग चीजें उससे अवगत कराना, ये हमारा मोटिव है. तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि सिंपल तरीके से हमारे क्लासरूम को हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं. तो मेरे पास एक स्ट्रॉ है. देखिए एक सिंपल सा एक स्ट्रॉ है. तो ये जो स्ट्रॉ है तो कोई भी ऑर्डिनरी स्ट्रॉ चलेगा, नारियल का पानी पीते वो वाला भी स्ट्रॉ चलेगा. लेकिन वो थोड़ा पतला होता है और बहुत ही लो क्वालिटी का होता है. तो अलग अलग क्वालिटी के आजकल मार्केट में स्ट्रॉज मिलते हैं. तो ये एक मैंने ये प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, पेपर वाला नहीं. और ये सीजर है, सीजर और प्लास्टिक की स्ट्रॉ. आवाज नहीं आ रहा है क्या? Sir, your volume is very low. ओके. चलो मैं हेडफोन. ओके, अभी आवाज आ रहा है मैम? Sir, it is still little bit low.
अभी देखिए आवाज ठीक से आ रहा है? अभी बेटर है सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो मेरे पास एक स्ट्रॉ है और ये सीजर है। इन दोनों के माध्यम से मुझे आवाज बनाना है, साउंड बनाना है बेसिकली। तो हम लोग देखते हैं कि साउंड कैसे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आवाज आ रही है ना? सर आवाज आ रही है बट बहुत स्लो आ रही है। हाँ, शायद नेटवर्क का इशू होगा मैम। यहाँ तो पूरा वॉल्यूम हाई किया हुआ है और अभी तो मैंने हेडफोन भी इस्तेमाल किया ताकि आवाज का कोई इशू ना हो। सो मेरे पास एक स्ट्रॉ है और सीजर है। इन दोनों के माध्यम से हम अभी इस स्ट्रॉ के दो पीसेस कर देंगे। तो देखिए, एक स्ट्रॉ है और स्ट्रॉ का ऐसे दो पार्ट कर दिया। लेंथ वाइज अगर देखेंगे हम तो दो पीस है, एक छोटा है और एक बड़ा है। इसका इनर डायमीटर देखेंगे हम लोग तो इनर डायमीटर सेम, इनर डायमीटर में कोई चेंजेस नहीं है, इनर डायमीटर सेम है, सिर्फ इसकी लेंथ में फर्क है। सो ये वाला शॉर्ट है, ये वाला लॉन्ग है। सर सॉरी कट करते. आवाज तुमचा खूप हळू येते. थोडासा आवाज वाढवू शकाल का? आवाज एवढाच आहे. एक मिनिट मी जरा लीव करतो. मे बी आय थिंक हेडफोन्स मुळे असू शकतं, कारण आता पार्टिसिपंट्स पण बाकीचे टीचर्स पण म्हणतात त्यांना आवाज ऐकायला येत नाहीये. एक मिनिट लीव करून परत जॉईन. अशी इंट्रोडक्शन व्यवस्थित ऐकायला येत होती. अच्छा, सरांचा आवाज ऐकू येत नाहीये का मॅम? नो मॅम, अजिबात येत नाहीये. बरं, आय थिंक ही इज रिजॉईनिंग. मॅम तुमचा आवाज येतोय पण सरांचा अजिबात येत नाहीये. रिजॉईनच करायला सांगा त्यांना. हा ते रिजॉईन करतात. सो सॉरी. आम्हाला इथे ऐकू येत होतं, दॅट्स द रिझन आम्हाला वाटलं नाही की म्हणजे आवाज ऐकू येत नाही. हॅलो. हा सर, आता येते ऐकू. आवाज येतोय ना? येस 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 सर. सॉरी. ठीक. थँक्यू सो मच सर. येस सर, आता ऐकू येतं. थँक्यू. सो मेरे पास एक स्ट्रॉ है और इस स्ट्रॉ के हम लोग दो पार्ट करेंगे। तो देखिए, एक कोई भी ऑर्डिनरी स्ट्रॉ लीजिए आप, सिर्फ नारियल का पानी पीते हैं ना, उससे थोड़ा बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। तो इस स्ट्रॉ के दो पार्ट कर देंगे। तो एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग वाला है। तो बस इसके दो पार्ट करने के बाद हमें इनर डायमीटर इन दोनों स्ट्रॉ का सेम आया है, बट इसका लेंथ जो है वो अलग अलग। अभी आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉ का एंड ऐसे पैटर्न करना है, चपटा करना है और सीजर के माध्यम से ऐसे तिरछा काटना है। देखिए, तिरछा काटना है। सेम ऐसे ही हमें दूसरे स्ट्रॉ के अंदर काटना है और हमें जोर से इसके अंदर फूंक मारना है। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर साउंड मिलेगा। तो दोनों स्ट्रॉ में से जो पिच मिलेगा वो अलग अलग होगा। तो आपको बताना कौन सा स्ट्रॉ से आवाज हाई पिच आएगा और क्यों, रीजन भी बता दीजिए प्लीज। मैसेज किया तो बहुत बेटर रहेगा। तो दो स्ट्रॉ में फूंक मारेंगे हम लोग, ब्लो करेंगे उतनी जोर से, बट दो स्ट्रॉ में से जो भी पिच मिलेगा वो अलग अलग होगा। सो एक में से हमें हाई पिच मिलेगा और एक में से लो पिच मिलेगा। शॉर्ट वाले का क्या मिलेगा मैम? स्मॉल वाला हाई पिच। हाय पिच. हाई पिच, यस सर. ओके। सो स्मॉल वाले से, शॉर्ट वाले से हमें हाई पिच मिलेगा और ये जो लॉन्ग वाला है उससे हमें लो पिच मिलेगा, ऐसे मैडम का कहना है। तो देखते हैं हम लोग, हमें पता नहीं है, हम जब ट्राई करके देखेंगे ना तभी हम सही मानेंगे। तब तक हमें पता नहीं कि क्या इसके पीछे का रीजन है, क्यों ऐसे हो रहा है, करके देखेंगे और उसके पीछे का सिद्धांत भी हम लोग समझ लेंगे। तो जोर से इसके अंदर फूंक मारते देखिए। आहे ना भारी? थोडा हसला तर चालेल बरं का. तर तेवढ्याच जोरात आपण फूंक दुसऱ्या स्ट्रॉ मध्ये मारणार आहोत. तर ह्यातनं वेगळा आवाज येतोय आणि ह्यातनं वेगळा आवाज येतोय. सो कौन से स्ट्रॉ से आवाज हाई पिच आ रहा है? शॉर्ट वाले से आवाज
हाई पिच आ रहा है और ये जो लॉन्ग वाला है उससे आवाज लो पिच आ रहा है। सही कहा आपने। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो ब्लो कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो रीड बनाया हमने, जो कट किया, स्लैंट कट जो किया है, ये रीड बना दिए। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे रीड बोलते हैं और ये रीड वाइब्रेट होता है। तो इस वाइब्रेशन के कारण हमें आवाज मिलता है। बट इसके अंदर जो ये वेव बन रही है इस लंबे वाले स्ट्रॉ के अंदर, सो ये वेव ऐसी बड़ी वेव इसके अंदर बन रही है और इस शॉर्ट वाले स्ट्रॉ के अंदर वेव्स जो है ना एकदम पास पास नहीं बन रही। तो उसी के कारण हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जिसे हम हर्ट्ज बोलते हैं, वो ज्यादा मिल रहे हैं और इसमें कम मिल रहे हैं। तो हमें पता है कि 20 हर्ट्ज जब बनते हैं तब आवाज सुनाई देता है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 वाले हर्ट्ज हम लोग सुन सकते हैं। उसके आबा वाले हम नहीं सुन सकते क्योंकि हमारे कान का जो पर्दा है ना डैमेज हो जाएगा। बट उसके नीचे वाले भी हम नहीं सुन पाते, वहां पर आवाज हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहे है, बट हम नहीं सुन पा रहे क्योंकि वहां सुनने के लिए हमें वो सफिशिएंट वाइब्रेशन नहीं है। सो हमें 20 से लेके 20,000 वाइब्रेशन हम लोग सुन सकते हैं। उसके आबा वाले कौन सुन सकता है बताइए? 20,000 के आबा वाले वाइब्रेशन कौन फील कर पाता या सुन सकता है? बैट, यस राइट। तो ये जो बॅट होता है, चमगादड़ जिसे बोलते हैं, वटवाघूळ ज्याला म्हणतात, तर ते जे आहे ते 20,000च्या वरचे जे कंपन आहेत ते फील करतं किंवा ऐकतं। सो और हम लोगों ने अगर देखा कि 1 से 20 जो है वो डॉग को सुनाई देता है। तो कितनी भी धीरे से आप घर के अंदर जाने का कोशिश कीजिए तो बाहर जो बैठा हुआ जो डॉग है वो तुरंत देखने लगता है कि उसे बहुत कम वाइब्रेशन फील होते हैं। 1 से लेके 20 तक के वाइब्रेशन डॉग को सुनाई देता है। 20 से लेके 20,000 ये हमें सुनाई देते हैं ह्यूमन को, और फिर 20,000 के अबाव जो होते हैं वो बैट को सुनाई देता है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने इस स्ट्रॉ में 2 छेद कर दिए, 1 और 2, ऐसे 2 होल्स कर दिए मैंने यहाँ पर। ओके, देखिए 2 होल्स है। अभी मैं इसे ब्लो करते टाइम धीरे धीरे इस होल को बंद चालू करूंगा। यहाँ पर 2 होल्स है। सो आपको बताना है कि कितने हमें यहाँ पर सुर मिलेंगे, कितने पिच मिलेंगे। होल्स 2 है लेकिन सुर कितने मिलेंगे, पिच कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। सो आपको नंबर ओनली बताना है। और नंबर के साथ साथ अगर कोई रीजन भी बताना चाहेगा तो प्लीज वेलकम, बता दीजिए रीजन भी कि क्यों ऐसे हो रहा है। कोई बता सकता है? ओके, चलो कोई आंसर नहीं मिल रहा है हमें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि 2 होल है लेकिन पिच हमें 4 और 5, ओके चलो ट्राई करते हैं। 4 और 5 बता दिया है कि यहाँ पर पिच मिलेगा। होल 2 है। आपने कभी अगर बांसुरी देखी होगी तो बांसुरी के ऊपर कितने होल होते हैं जहां पर हम लोग फिंगर रखते हैं? जो फिंगर रखते हैं वहां पर कितने होल्स होते हैं? अराउंड आई थिंक मुझे लगता है कि 6 होल होते हैं, राइट। सो 6 होल होते हैं लेकिन पिच कितने मिलते हैं? 7 मिलते हैं, 7 सुर मिलते हैं, है ना। सा रे ग म प ध नि सा, ये जो सुर है हमारे वो 7 सुर हमें 6 होल में से मिलता है। सो यहाँ पर 2 होल है, सो सुर कितने मिलेंगे हमें? 3 मिलते हैं, 3। सो हम लोग ट्राई करेंगे और क्यों ऐसे मिलता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीन अलग अलग सुर आ रहे। बजने में बेसुरी है लेकिन बांसुरी है। तो ऐसी बेसुरी बांसुरी हम लोग घर में बना के बच्चों के साथ खेल सकते हैं और इसके रीजन हम लोग देख सकते हैं। सो इसमें 3 कैसे होल मिल रहा है, सो वो पहले हम लोग देखते हैं। इसमें एयर कॉलम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोगों ने देखा पूरा लेंथ का अगर स्ट्रॉ इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सो 1 साउंड मिलेगा। देखिए यहाँ का होल अगर ओपन करते तो 1, ये 2, ये 3, पूरा लेंथ इस्तेमाल करेंगे तो 1, ये वाला 2 और ये वाला 3, ऐसे। सो यहाँ पर 3 एयर कॉलम मिल रहे, इसी के कारण हमें पिच भी 3 मिल रहे, लेकिन होल 2 है क्योंकि इसमें आगे वाला भी काउंट किया जाता है। अगर आपने कभी देखा होगा कि जो बांसुरी होती है उसमें यहाँ पर एक होल होता है, जहां पर फूंक मारते हैं हम लोग, उसके पास एक होल होता है, उसमें हम उंगली नहीं रखते बट वहां पर एक होल होता है।
सो वो जो होल होता है ना, वो हवा अंदर जाने के लिए होता है, क्योंकि हमारे लंग्स में ना सफिशिएंट एयर नहीं होती, हवा ज्यादा नहीं बैठती, तो जितना हवा हम ले सकते हैं उतना हम लंग्स में लेंगे, और ग्लो करते टाइम हमें कम पड़ सकते हैं, इसलिए हम जब ग्लो कर रहे तब इस ऊपर वाले क्षेत्र से भी हवा धीरे धीरे अंदर जाती है। सो यहाँ जो होल होता है वहां पर जो हवा जाता है अंदर, ये वहां पर एक बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। बर्नौली का जो नियम है, हाई वेलोसिटी मीन्स लो प्रेशर, सो वो वाला यहाँ पर इस होल से हमें वो सिद्धांत दिखाई देता है। तो इस तरीके का एक फ्लूट नॉर्मली काम करता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हम लोग साउंड इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं। और हमने देखा कि शॉर्ट वाला जो स्ट्रॉ है उसका आवाज हाई पिच आ रहा है, और लॉन्ग वाले का आवाज लो पिच आ रहा है। तो घर में मम्मी और पापा है, या स्कूल में मैडम और सर है, तो दोनों में से किसका आवाज हाई पिच होगा, लेडीज का या जेंट्स का? काय म्हणताय, कोणाचा आवाज हाय पिच असेल, लेडीज का जेंट्सचा? लेडीज, ओके, वाह वाह। पल्लवी मैम ने बता दिया है कि लेडीज का आवाज हाई पिच है, मतलब आप मानते हो कि लेडीज का आवाज हाई पिच आता है। ओके, गुड, थैंक यू। दीप्ति मैम ने भी बताया। तो यहाँ अगर हम लोगों ने देखा कि लेडीज का, जी यस वनीता मैम, लेडीज ही, तो लेडीज का आवाज जो है ये हाई पिच होता है। अच्छा, ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू दीपिका मैम, थैंक यू। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लेडीज बता रही है कि लेडीज का ही आवाज ज्यादा से ज्यादा हाई पिच है, और उसका रीजन भी मैडम ने बता दिया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सच में हाँ, लेडीज का आवाज बहुत हाई पिच होता है और जेंट्स का आवाज बहुत लो पिच होता है। इसलिए घर में सबसे अगर देखेंगे तो विनर घर में लेडीज ही होते हैं। हम लोग देखते हैं कि पापा का आवाज खाली रूम में ही रहता है, लेकिन मम्मी का आवाज सोसाइटी के बाहर जाता है, ऐसे हाई पिच होता है मम्मी का आवाज। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि लेडीज के गले में जो कॉर्ड होता है ना, उसे वोकल कॉर्ड बोलते हैं, मतलब जेंट्स के और लेडीज के गले में, दोनों के गले में जो कॉर्ड होता है उसे हम लोग वोकल कॉर्ड बोलते हैं। और उसकी जो लेंथ है, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, पर्दा होता है, उस पर्दे के ऊपर कितना टेंशन है उसके कारण हमारा पिच बनता है। तो लेडीज के गले में जो वोकल कॉर्ड होती है वो 12.5 mm से लेके 17.5 mm तक होती है, और जेंट्स के गले में जो होती है वो 17.5 mm से लेके 25 mm तक होती है। सो उसका लेंथ ज्यादा होता है, लाइक ये स्ट्रॉ की जैसे। और लेडीज के गले में जो ये वोकल कॉर्ड होती है उसकी लंबाई ऐसे होती है, छोटी, शॉर्ट। तो शॉर्ट लंबाई होने के कारण और मेम्ब्रेन के ऊपर ज्यादा टेंशन के कारण आवाज हाई पिच होता है लेडीज का, और जेंट्स का लो पिच होता है। अगर हम लोग नेचर में देखेंगे तो नेचर में क्रेन अगर आप लोगों ने देखा होगा, ज्याला मराठीत बगळा म्हणतात, सो उसका अगर गर्दन देखा होगा आप लोगों ने तो काफी लंबा होता है। और स्पैरो आपने देखा होगा, तो स्पैरो म्हणजे चिमनी, तो उसका अगर गर्दन देखा होगा तो बहुत शॉर्ट होता है, उसके एकदम बॉडी को अटैच होता है, छोटा सा ही गर्दन होता है। बट स्पैरो का आवाज ना बहुत हाई पिच होता है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे बगड़े को, तो इस क्रेन का आवाज लो पिच होता है और स्पॅरो का आवाज हाय पिच होता है। तर एखाद्या जर समजा शाळेमध्ये 40 किंवा 50 विद्यार्थी असतील तर तिकडे शिकवायला कोण पाहिजे, मॅडम की सर? तर तिकडे शिकवायला मॅडमच पाहिजे, सर नाही. सरांचा आवाज मागच्या मुलांपर्यंत जाणार नाही आणि प्रचंड गोंधळ होईल मागच्या मुलांमध्ये. त्यामुळे लेडीज जर असेल, नंबर ऑफ स्टुडंट जर जास्त असतील तर तिकडे शिकवायला लेडीज असलेल्या बऱ्या. म्हणून आणि लेडीजचा आवाज जो असतो ना, कॅरिंग कॅपॅसिटी जास्तीत जास्त असते आणि क्लिअर आणि स्पष्ट आवाज एंड पर्यंत जातो। म्हणून रेलवे स्टेशन वर जर बघितलं असेल, आप लोगों ने अगर देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के ऊपर ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली बताने वाली ही लेडीज ही होती है। तो लेडीज का आवाज जो होता है ना, सो बहुत ही क्लियर होता है और हाई पिच होता है, और कैरिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है, इसलिए लेडीज का आवाज ज्यादा से ज्यादा जगहों पर हमें देखने को मिलता है। तो ये एक हो गया साउंड से रिलेटेड। और एक दो टॉय हम देखेंगे कि कैसे आवाज बनता है। तो एक बर्ड है, इसमें 3 होल्स है, 1 2 3। कोई भी होल नहीं बंद करना है, पानी में डिप करना है, नीचे के टैंक तक पानी लेना है, जोर से फूंक मारना है। बहुत ही बढ़िया साउंड आ रहा है, इसमें भी बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ये जो चिड़िया है उसके नीचे टैंक जो है, टैंक में पानी भर,
टैंक हमने पूरा इसे पानी के अंदर डुबाया और नीचे के टैंक तक, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला टैंक है, इसमें पूरा पानी भर गया और इसमें पानी नहीं है। सिंपल साउंड आ रहा है पानी भरने के बाद। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड आ रहा है। और जब हम ब्लो कर रहे हैं तो ये पाइप से हवा अंदर जा रही है ब्लो पाइप से, और जो अंदर पानी है पानी के ऊपर टकरा रही है, तो पानी का ऊपर बबल बन रहा है और पानी का लेवल जो है ऊपर नीचे हो रहा है। सो वाटर कॉलम के चेंज होने के कारण हमें ऐसे एकदम बहुत इंटरेस्टिंग साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आहे असा बर्ड आहे। और तुम्हाला कोणाला जर पाहिजे असेल तर मार्केटमध्ये असा पक्षी मिळतो आणि तुम्ही यस इंटरेस्टिंग आहे, थँक्यू। सो असा पक्षी तुम्ही बघू शकता। और एक हमारे पास साउंड का एक बहुत ही बढ़िया टॉय है। ये देखिए एक ग्लास है और ये थोड़ा स्पेशल ग्लास है, शायद आप लोगों को पता होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ग्लास है और इसमें स्पेशल क्या है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है ना ये स्टैंड है और ऊपर वाला कर्वेचर ना अलग से, इसलिए हमें होल्ड करने के लिए या वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया करना है। हमारा जो फिंगर है इसे पानी में डिप करना है और इसके ऊपर जो लाइंस होते हैं ना उसमें थोड़ा डस्ट या कुछ पार्ट होगा तो उसे क्लीन करना है, 2-3 बार कपड़े में पोंछ लेना है ताकि उसके ऊपर का पूरा डस्ट पार्ट निकल जाए। और ये इसका जो ये ग्लास का रिम है ना इसे भी क्लीन करना है कपड़े से वगैरह पोंछ, और फिर आपको यहाँ पर रब करना है। देखिए फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इतना बढ़िया आवाज आ रहा है। काय मग कसं वाटलं? भारी आहे ना? हाँ यस, वाव आहे, भारी आहे, लय भारी आहे। आणि ह्याच्यामध्ये जर आपण थोड़ा-सा पानी भर, हम लोग अगर मान लो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे तो अभी क्या हो जाएगा आपको बताना की सॉरी स्पीच खूपच छान, थैंक यू सर। ओके थैंक यू मैम सॉरी। तो अगर हम लोग इसे ऐसे रब करेंगे और अभी इसमें पानी भर दिया नीचे के टैंक तक, नीचे वाला जो ग्लास है इसमें, यस थैंक यू। अभी इसे अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो देखिए क्या आवाज लो पिच हो गया। जैसे जैसे हम लोग इसमें पानी भरेंगे वैसे वैसे इसका पिच लो हो जाता है और हमें लो पिच सुनाई दे रहा है। अभी जो एयर कॉलम था उसकी जगह किसने ली? पानी, और जो कुछ वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रहे वो पानी के अंदर जा रहे हैं, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और उसी के कारण हमें आवाज जो है वो लो पिच सुनाई दे रहा है। और जब एम्प्टी ग्लास लेते और फिर हम इसे ऐसे रब करते तो बहुत ही बढ़िया आवाज सुनाई देता। लेकिन ऊपर वाले अगर कर्वेचर में हमने होल्ड किया है, एम्प्टी ग्लास है, इसमें पानी नहीं है और ऊपर वाले ग्लास में वो पकड़ा ऐसे और फिर रब किया तो मुझे वाइब्रेशन फील हो रहे हैं यहाँ पर, मेरे हाथ को वगैरह अभी यहाँ पर फील हो रहा है बट आवाज नहीं आ रहा है। तो जो कुछ वाइब्रेशन हो रहा है ना वो कहाँ जा रहा है? मेरा हाथ जो है ना वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हाथ में जा रहा है और उसी के कारण हमें आवाज नहीं मिलता। इसलिए हमें ऐसे स्पेशल ग्लास चाहिए, स्टैंड अलग और ऊपर वाला कर्वेचर अलग, जिसके कारण हम ऊपर वाले इस पार्ट में बहुत अच्छे से वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक बहुत ही बढ़िया छोटा सा टॉय था। तो इस तरीके से साउंड के जो एक्सपेरिमेंट है हमने अलग अलग 3-4 एक्सपेरिमेंट देखे और वो हर बहुत कुछ ज्यादा हमें सामग्री या मटेरियल नहीं लगती, फिर भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता है। आपका एक
प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। हम लोग यहाँ पर देखेंगे अवार्ड विनिंग प्राइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसे। तो हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे स्लेट है और ये पेन है। इसे 50,000 का पुरस्कार मिला है। जब अरविंद गुप्ता जी इस व्यक्ति से मिले, इनका नाम है दिलीप भट्ट और ये इसरो में काम करते हैं और इनका जो लड़का है वो नेत्रहीन है। तो गुप्ता जी को ये पार्टी बहुत अच्छी लगी, तो गुप्ता सर ने इसे बहुत पॉपुलर किया और सर ने इसको नाम दिया है टचिंग स्लेट। तो ये जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उन बच्चों के लिए बनाई गई है स्लेट। तो देखिए वेलक्रो है, चप्पल में या बैग में होता है, किसी भी कॉरिगेटेड सीट के ऊपर चिपका है तो ये स्लेट बन जाती है। फिर ये पेन बनाया है, पेन है, रबर का पीस है, कैमरोल का डब्बी है, साइकिल का स्पोक है और इंक की तौर पे ये बहुत ही अच्छा हमने ऊल इस्तेमाल किया। ऊल क्यों? क्योंकि ऊल में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स वेलक्रो को चिपकते हैं। इस तरीके के ये ऊल यहाँ पर लगा है और एक क्रैंक को हम जब रोटेट करते हैं तो पूरा इंक जो है ना ऊपर लपेट जाता है इस डब्बे में। यहाँ पर देखिए ये वाला। तो यहाँ हम कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं और जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता ना वो बच्चा अपने फिंगर से फील करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्लेट। तो इसे एनसीईआरटी ने 50,000 का पुरस्कार दिया है। ये अवार्ड विनिंग का है। अगर देखिए कि मुझे तो इतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता है, फिर भी मैंने कुछ निकालने का प्रयास किया है। अभी जिन बच्चों को नहीं दिखाई देता है वो बच्चा क्या करता है, अगर यहाँ पर हाथ लगाएगा तो ये ऐसे ये होता है रफ लगता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर हाथ लगाऊंगा तो मेरे फिंगर को जो स्मूथनेस पता चलता है, उससे मैं फील कर पा रहा हूँ, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ तो निकाला हुआ है। और वो बच्चा फील करके, महसूस करके पता करेगा कि यहाँ कौन सा ड्राइंग निकाला। इतना बढ़िया ये ब्लाइंड बच्चों के लिए बनाई गई स्लेट है, इसलिए इसे एनसीईआरटी ने 50,000 का पुरस्कार भी दिया है। तो इतना इंटरेस्टिंग ये स्लेट है। और अगर इंक नहीं चाहिए आपको तो इंक निकाल दीजिए और इंक को फिर से आप पेन के अंदर भेज दीजिए। तो ऐसे मार्केट में कोई पेन है क्या? तो ऐसे मार्केट में कोई पेन नहीं है। ये एक में ऐसा पेन है कि यहाँ पर हम बार बार लिख सकते हैं और फिर से यहाँ पर कोई भी हम ड्राइंग कर सकते हैं इस तरह, है ना बढ़िया। तो ये बहुत ही बढ़िया स्लेट है। और ये क्या है, वेलक्रो है, जो हमारे चप्पल बैग में होता है ना वो वेलक्रो, और किसी भी कॉरिगेटेड सीट के ऊपर चिपका देना। तो बस सिंपल। तो अगर आपको किसी को बनाना है, यस सोनालिमा, तो अगर आपको किसी को बनाना है तो आप लोग वेबसाइट के ऊपर देखिए, अरविंद गुप्ता वेबसाइट के ऊपर टचिंग स्लेट के नाम से। तो हाँ जी, तो ये आप लोग देख के बना भी सकते हैं और सिंपल है। हम लोग एक थोड़ा सा अलग खिलौना दिखाते हैं। ये एक वेव मॉडल है, ठीक है। तो देखिए ये, तो ये वेव मॉडल है। ये यहाँ पर स्ट्रॉ और टेप दोनों लगाया है। तो पहले क्या किया, टेप जो है ना ऐसे जमीन के ऊपर बिछाया है और उसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस में हमने स्ट्रॉज लगाए। देखिए ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो सेम है और नीचे वाला भी ना सेम है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है और इक्वल होना चाहिए। आप इक्वल लगाओगे ना उतना आपके वेव जो है ना बहुत अच्छे से आते हैं। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स है और ये ट्रांसफर वेव जो है ना बहुत अच्छे से दिखाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर टैप करते हैं, तो देखिए वेव कैसे आगे जाता है, एक पल्स आगे जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया ये वेव मॉडल है, जो कि अभी 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है और आगे जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो देखिए एक अगर हमने ऐसे यहाँ पर पल्स दिया तो इस तरीके से ये वेव आगे जाता है। जैसे कि हम लोग पानी में जब स्टोन डालते हैं ना तो हमें लगता है कि पानी आगे आगे जा रहा है, बस पानी जस्ट मीडियम होता है और एनर्जी आगे जाता है। तो सेम वैसे ही इस स्ट्रॉ को एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं हम लोग तो एनर्जी आगे जा रहा है और स्ट्रॉ जस्ट मीडियम है। स्ट्रॉ अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, बाजू वाले स्ट्रॉ को दे रहा है। अगर हमने थोड़ा सा इसे ट्विस्ट किया, ऐसे घुमाया हम लोगों ने,
तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट क्रेस्ट क्रेस्ट। तो नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं ट्रफ ट्रफ ट्रफ। दो क्रेस्ट और या दो ट्रफ का जो बीच वाला डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ बोलेंगे। ये एम्पलीट्यूड हो गया और यहाँ से यहाँ एक फ्रीक्वेंसी हो गई 1 2 3। सो 1 सेकेंड के अंदर हम ऐसे 3 फ्रीक्वेंसी पार कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने इसे थोड़ा सा और ज्यादा ट्विस्ट किया तो क्या कम हो रहा है, इसका वेवलेंथ कम हो रहा है। देखिए वेवलेंथ कम हो गया और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इसकी ये फ्रीक्वेंसी बढ़। तो इस तरीके का बहुत ही बढ़िया ये ट्रांसवर्स वेव है। और अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो ऐसे डीएनए मॉडल दिखाई दे रहा है, डबल हेलिक्स। तो वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि इस तरीके का डीएनए होता है, एक हेलिक्स में कितनी जोड़ी होती है, ये टीजीसी की जोड़ी होती है। ऐसे सभी चीजें बताने वाले बहुत ही बढ़िया तो साइंटिस्ट है, मतलब थे वाटसन एंड क्रिक। तो देखिए कितना ये बढ़िया और आसान टॉय है। और क्या लगता है इसके लिए, सेलोटेप चाहिए और स्ट्रॉ चाहिए। और यहाँ पर हमने 100 स्ट्रॉ लगाए ताकि थोड़ा बड़ा अगर माहौल हो आपके सामने, 100-200 लोग भी बैठे तो ये उनको अलग एकदम आसानी से आप दिखा सकते हो, इसलिए थोड़ा बड़ा बना है 100 स्ट्रॉ। ये एक मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत ही बढ़िया टॉय बना है। ये तो अट्रैक्शन रिपल्शन जस्ट बच्चों को पता चलना चाहिए मैग्नेटिज्म का, तो इसलिए मैग्नेट का हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग बना दिया है। तो देखिए मैग्नेट यहाँ पर रिपेल कर, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है यहाँ पर। तो एक स्ट्रॉ लिया और एक वुडन पीस, उसके अंदर एक स्ट्रॉ बिठाया और मैग्नेट डाल दिया। अगर यहाँ पर ऐसे उल्टा करके डालेंगे तो ये अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, जब नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ साउथ जब पोल्स पास में आते हैं तो रिपेल कर, तो इसलिए ये रिपेल कर रहा है। और ये अट्रैक्ट कब होता है, नॉर्थ और साउथ जब पास में आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो इसी सिद्धांत के ऊपर ये हमने यहाँ पर एक जंपिंग फ्रॉग बना दिया। तो 2 मैग्नेट रखते हैं, बाकी का मैग्नेट पूरे उल्टा करके इसमें डालेंगे तो ये रिपेल करेगा। फिर से 2 रख देंगे, फिर बाकी के बंच को उल्टा कर देंगे और लास्ट वाले में वैसे वैसे। तो ये यहाँ पर स्प्रिंग बन गई और इस स्प्रिंग के ऊपर एक फ्रॉग, मेंढक का अगर हमने ऐसे एक चित्र रख दिया, इसके ऊपर ड्राइंग रख दिया और इसे थोड़ा सा ऐसा प्रेस किया तो ऐसे लगेगा कि ये मेंढक जो है, ये फ्रॉग जो है ऐसे जंप कर, तो जंपिंग फ्रॉग जो है ये टॉय मिल जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है और बच्चे एकदम आसानी से इसे सीख सकते हैं। प्राइमरी के बच्चों के लिए वगैरह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है। इसी अट्रैक्शन रिपल्शन के सिद्धांत के ऊपर जर्मनी, जापान, चाइना में ट्रेन चालू है, मैग्लेव ट्रेन। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि आयु का जो यूनिवर्सिटी में संस्था है, प्रोफेसर जैन नार्लिकर ने चालू की थी। तो यहाँ पर उस लड़की का नाम है हमसा पद्मनाभन, उसने इसके ऊपर रिसर्च किया, ये टॉय कैसे चलता है, उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, और इसके ऊपर 12 पेजेस लिखे गए। और उसमें से बहुत सारी कंट्री उस इसमें आई थी, तो उसमें से 3rd प्राइज उस लड़की को मिला। 27 कंट्री आई थी, उसमें से 3rd प्राइज इस लड़की को मिला। प्राइज का जो ये था प्राइज मतलब 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उस लड़की को मिले। और फिर नासा ने सोचा कि अरे ये लड़की 10th में है और इसने इतना अच्छा इसके ऊपर रिसर्च किया है टॉय के ऊपर, तो क्यों ना हम लोग इसके नाम से एक छोटा सा माइनर प्लैनेट रखें। तो अब वो लड़की के नाम से एक छोटा सा भी माइनर प्लैनेट भी है, तो आप लोग गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, उसका नाम हमसा पद्मनाभन। या आप लोग arvindgupta.toys.com के ऊपर जाने के बाद ये टॉय को सर्च कीजिए, ये टॉय का नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन। और लेविटेशन के नीचे अगर एंड में जाएंगे आप लोग ये टॉय के, तो वहां पर उस लड़की ने जो रिसर्च किए हुए पेपर है ना, उसका पीडीएफ बना के रखा, तो आप लोग वो पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो ये सिंपल टॉय है, अगर आप घर में बनाएंगे तो अराउंड एक 30 रुपए खर्चा आएगा। तो ये फोम रबर का पीस है, फोम रबर, और यहाँ पर एक नॉच ऐसे 3 नॉच कर दिए। 3 नॉच में, एक नॉच में सीढ़ी का पीस या कोई आपको गत्ता या कोई भी थिक पेपर इसके अंदर बिठाना है। ये जो ब्लैक दिख रहा है ये मैग्नेट है,
यहाँ 2 और यहाँ पर 2, ऐसे 4 मैग्नेट, और एक पेन में 2 मैग्नेट। ऐसे आजकल मार्केट में ऐसे यूज एंड थ्रू पेन मिलती है, इन्वायरमेंट के लिए डेंजर है, तो इसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट मैग्नेट यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं आगे वाले, पीछे वाले जो मैग्नेट है ये रिपेल कर, तो पीछे रिपल्शन है और आगे अट्रैक्शन है। बस इसे अगर ऐसे रख देंगे और आप देख रहे हैं तो यहाँ पीछे वाले जो मैग्नेट है, ये तीनों मैग्नेट एक लाइन में, बेस प्लस पेन का, लेकिन आगे वाला वैसे नहीं है। आगे वाला क्या है, बेस वाले थोड़ा आगे और पेन का पीछे, तो ये रिपेल कर रहा है। और इसे थोड़ा सा स्पिन करते हैं हम लोग, ये देखिए बहुत देर तक पेन जो है हवा में तैरता है। अब ये पेन तैर रहा है और यहाँ पर टेप लगाया जानबूझ के, ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि ये पेन घूम रहा है। तो इसी सिद्धांत के ऊपर जर्मनी, जापान, चाइना में ट्रेन चालू है, मैग्लेव ट्रेन। ये ट्रेन 1 आवर में 600 किलोमीटर दौड़। अभी इसी सिद्धांत के ऊपर पुणे और मुंबई एक ट्रेन चालू होने वाली है, हाइपर लूप के नाम से, हाइपर लूप। तो देखिए कितना बढ़िया और बहुत फ्रिक्शन लेस है, इसलिए स्पीड बहुत ज्यादा है इसमें। और ओनली मैग्नेट है, और जो भी फ्रिक्शन है ना अभी हवा से, इसलिए इस रूम में जितना हवा है उस कारण वो रुकने का प्रयास करे। जितना हवा अगर हमने इसमें कम दिया उतना वो रोटेट होता ही रहेगा बहुत देर तक। तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन, और अभी ये 6th स्टैंडर्ड के सिलेबस में भी है। ये बहुत ही बढ़िया एक खिलौना है इल्यूजन का, और ये स्प्रिंग है। देखिए इस स्प्रिंग को अगर हमने ऐसे घुमाया तो ऐसे लग रहा है कि स्प्रिंग बड़ा 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 हो रहा है। ओके, ऊपर ऊपर जा रहा है या नीचे नीचे आ रहा है, ऐसे अभी लग रहा है। ये इल्यूजन है बेसिकली, इसे हम लोग ऑप्टिकल इल्यूजन बोलेंगे। इस ऑप्टिकल इल्यूजन को और थोड़ा डेप्थ में और अच्छा थोड़ा समझने के लिए हमारे पास एक बॉल है। इस बॉल को हम इसके अंदर रख देते हैं और इसे फिर से घुमाते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बॉल जो है ये ऊपर जा रहा है ना, या नीचे आ रहा है। देखिए लग रहा है ना, ये बॉल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। बॉल नीचे भी नहीं आ रहा है और बॉल ऊपर भी नहीं जा रहा है, बट हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि ये बॉल ऊपर 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 जा रहा है। वाटतंय ना बॉल वर जाताना, पण हा बॉल वर पण नाही जात आणि खाली पण येत नाहीये, बॉल जाग्यावरच आहे, पण आपल्याला असा भास होतोय की तो बॉल वर चाललेला आहे किंवा खाली येते। तर ह्याला म्हणतात दृष्टीभ्रम। हा भ्रम आहे आपला बेसिकली, आणि अशा प्रकारचा भ्रम आपल्याला होत असतो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया भ्रम आहे। असा भ्रम आपल्याला आपल्या शेजाऱ्यांवर होतो बरं का। आपल्याला असं उगाच वाटतं की आपल्या शेजाऱ्यांकडे भरपूर पैसे, पण असं काही नसतं। तो सिंपल ऐसे इस तरीके का एक दृष्टि भ्रम है, और ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। और ऐसे हम लोग कहाँ देखते हैं, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन हमारी किसी स्टेशन पर पहुंच गई और 2 मिनट के बाद अगर हम लोग देखते तो हमें पता चलता है कि हम विंडो से बाहर देखते हैं, तो हमें तब पता चलता है कि अरे हमारी ट्रेन जो है ना वो जा रही है और बाजू वाली जो है रुकी हुई है। लेकिन 2 मिनट के बाद हम ठीक से अगर प्रॉपर देखेंगे ना तो रियलाइज होता है कि अरे नहीं, हमारी तो रुकी हुई है, हमारी ट्रेन स्टॉप है, वो बाजू वाली जा रही है। ऐसे हमें भास होता है। अब अगर गौर से देखना है इस तरीके से छोटे मोटे हमें भ्रम होते रहते हैं, तो इल्यूजन होते रहते हैं। तो ये इल्यूजन है। तो ये बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अरविंद गुप्ता जी ने सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया खिलौना बनाया, ये मैस्टिक मॉडल, जो कि माचिस की तीली और साइकिल के वॉल ट्यूब के माध्यम से ये टॉय बनाया। ओके, हाँ, याचं नाव आहे बॉल इल्यूजन म्हणतो आपण याला, या टॉयला बॉल इल्यूजन म्हणतो। आणि हे जे वायर आहे ती ही आतमध्ये एक वायर घातलेली आहे, GI वायर म्हणून मार्केटमध्ये भेटते। तुमच्याकडे कुठली बाइंडिंग वायर
कॉपर वायर जे काही मटेरियल असेल तर ते घेऊ शकताय. याच्यावरती हे स्लीव घातलेली आहे. स्लीव म्हणजे दोन वायर एकत्र आल्यानंतर शॉर्ट सर्किट होणे वगैरे म्हणून फॅन मध्ये असतात, तसं ते वो इसके ऊपर डाला हुआ है, स्लीव डाला है. ये वायर है, स्लीव है, यहाँ पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए थ्रेड लगाया है, देखिए रोटेट करने के लिए. और इसके अंदर ये बॉल बिठाया है, कोई भी ऑर्डिनरी अपना जो घर में मिलता है सिंपल बच्चे जो करते हैं वो ऐसे बॉल, इसे बोलते हैं बॉल इल्यूजन. अगर आपने arvindgupta.toys.com के ऊपर अगर सर्च किया बॉल इल्यूजन के नाम से तो आपको ये मिल जाए. तो ये अरविंद गुप्ता जी का सबसे पहला खिलौना है. इसका नाम है मैस्टिक मॉडल. ये टॉय का नाम है मैस्टिक मॉडल. मैस्टिक मॉडल में माचिस के स्टिक से बना हुआ है, इसलिए मैस्टिक मॉडल नाम दिया है. तो माचिस की तीली है और साइकिल का वाल ट्यूब है. साइकिल का वाल ट्यूब जहां हम हवा भरते, ब्रास का छोटा सा पार्ट होता है ना निकल का, उसके अंदर एक छोटा सा ये ब्लैक कलर के ट्यूब होते हैं, उसे बोलते हैं वाल ट्यूब. और माचिस की जो हमारा स्टिक है ना, उसके ऊपर का जो फॉस्फोरस है वो निकालना है और आपको ऐसे माचिस की तीली जो है ना इसके अंदर एक दूसरे के अंदर बिठाना है, इस रबर के अंदर. और आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये जो रबर है ना, रबर के अंदर इतनी टाइटली ये बैठता है वाल ट्यूब का पीस कि एकदम स्ट्रांग हो जाता है. और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये इसी के लिए बना है, मेड फॉर इच अदर, इसी के लिए बना हुआ है. ऐसे इस तरीके का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो ये गुप्ता जी का सबसे पहले खिलौना. फिर हम लोग अगर ये हमें दिखाई दे रहा है कि हेक्सागन को अगर हम लोग दबाएंगे ऐसे तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये arvindgupta.toys.com ये वेबसाइट है, प्लीज नोट डाउन कीजिए. थैंक यू. यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये रेक्टेंगल बन गया. रेक्टेंगल को अगर हम लोगों ने ऐसे पुश किया तो ट्राइंगल बन रहा है. ये कैसे ट्राइंगल है, इक्विलैटरल, मतलब तीनों इसकी जो भुजाएं हैं वो सेम है, इससे बड़ा सा एक बहुत बढ़िया ट्राइंगल मिल गया. इसे अगर हम लोग ट्विस्ट करेंगे तो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं. अगर ऐसे देखेंगे इंफिनिटी दिख रहा है हमें, इंफिनिटी का लोगो. और हम लोग अगर ऐसे देखेंगे तो सैंड क्लॉक भी दिखाई दे रहा है. और इसे इसके ऊपर एक रख दिया तो हमें सिमेट्री भी, सेम को सिमेट्री. अगर इसे छोड़ देते तो हमें ये क्या मिल जाता है, हेक्सागन. ठीक है. अभी हेक्सागन में से एक स्टिक कम कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, पेंटागन. पेंटागन को अगर बीच में से पुश करते थोड़ा सा दबाते ऊपर से तो ये मम्मा पढ़ रही है. ट्रेपेजियम को हम लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से पुश कर देते, हाउस जैसा लग रहा है या मंदिर जैसे दिखाई दे रहा है ये, और थोड़ा पुश कर देते अंदर की तरफ तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, अभी ये ट्रायंगल दिख रहा है. बट इसके दो भुजाएं सेम है. इसे हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया. मराठी त्याला समद्विभुज असा त्रिकोण म्हणतात. तो अगर हम लोग इसे ट्विस्ट करते हैं, ओके, तो हम लोग इसे ट्विस्ट करते हैं तो ये आपका और हमारा पसंदीदा एक बहुत ही बढ़िया स्टार मिल जाता है. तो कर देंगे तो फिर से ये पेंटागन आता है. देखिए स्टार कैसे बनाना है, ऐसे करना है, नीचे लेके आना है और ये बन गया स्टार. फिर से छोड़ा तो ये पेंटागन बन गया. पेंटागन में से एक स्टिक कम कर देंगे हम लोग तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा. स्क्वायर मिल रहा है. स्क्वायर को अगर हमने ऐसे दबाया तो ये क्या दिखाई दे रहा है, काइट जैसे दिख रहा है या बर्फी की जैसे दिख रहा है. कुठली बर्फी अशी सांगा बरं, या हमें रोम्बस दिखाई दे रहा है ना, तो रोम्बस के जैसे भी दिख रहा है. तो ये बहुत ही लचीला है स्क्वायर. उसमें से एक हमने स्टिक कम कर दी. काजू कतली, बापरे दीपिका मॅडम, काजू कतली 900 रुपये किलो है. थैंक यू. काजू कतली खरे. यस. सो या अगर हम लोगों ने इसे इस तरफ से अगर प्रॉपर्टी से चेंज नहीं हो रही, कहीं भी आप दबाइए ट्राइंगल को बट प्रॉपर्टीज की चेंज नहीं हो रही, लेकिन हमारा स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन ये सभी पार्ट जो है ये लचीले है और एकदम वॉबल कर रहे हैं. बट ट्राइंगल जो है इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती और नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग शेप ट्राइंगल है. इसलिए अगर आप बड़े बड़े मोबाइल टावर्स या कोई ब्रिज अगर आपने देखा होगा, मतलब पुराने जमाने के लोहे के अगर ब्रिज देखते हो आप लोग ट्रेन के वगैरह, तो बहुत सारे जो ब्रिज होते हैं वो त्रिकोण के बने. त्रिकोण नेचर में सबसे स्ट्रांग है 2D में. इतना बढ़िया और सिंपल तरीके से बच्चे थे ऐसे शेप को हम लोग बता सकते हैं, दिखा सकते हैं. ये हो गया 2D. हम लोग अभी 3D देखेंगे. तो 3D में हमारे पास 4 मॉडल है अलग अलग. ये देखिए, ये इजिप्ट में इस्तेमाल होता है. इसका बेस
स्क्वायर है और इसे हम लोग पिरामिड बोलते हैं। ये दोनों तरफ ट्राइंगल है, तो ये न्यूटन ने इस्तेमाल किया। जो सनलाइट है दिखने में वाइट है, लेकिन उसके अंदर 7 कलर है दिखाने के लिए न्यूटन ने इसका इस्तेमाल किया। ओके, तो न्यूटन ने इसका इस्तेमाल किया। और मेरा आवाज आ रहा है? प्रिज्म, Yes, sir. या प्रिज्म, दिस इज प्रिज्म। सो ये प्रिज्म है और ये 2 स्क्वायर हमने यहाँ पर जोड़ दिया। थैंक यू। अगर 2 स्क्वायर हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो ये क्यूब बन गया। यस, तो क्यूब बन गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये ट्राइंगल है, 1 2 3 और नीचे से भी एक ट्राइंगल है। सो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं या क्या कहेंगे? देखिए, पिरामिड अलग है, पिरामिड यहाँ पर है। हम पल्लवी मैम यहाँ पर पिरामिड है देखिए, लेकिन यहाँ इसका जो बेस है ना स्क्वायर बेस है ना, तो ये स्क्वायर बेस वाला पिरामिड यहाँ पर है। फिर प्रिज्म है, फिर ये क्यूब है, फेसेस। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल लँग्वेज शंकू नाही, शंकू असा नसतो, शंकू पूर्ण असा टोपी सारखा असतो, नॅरो असतो वरती। तो इसे हम लोग देखिए, ये नैरो नहीं है, वैसे शंकु के जैसे दिखाई नहीं दे रहा है। कोन, हाँ कोन मीन्स शंकु ना, तो नहीं वैसे भी नहीं दिख रहा है। समोसा, अरे वाह, मतलब हाँ टाइम हो गया लगता है। तो ये समोसा भी नहीं है, हाँ लेकिन समोसे के जैसे दिख रहा है। यस, तो मैं इसे आपको बता दूं, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा मीन्स 4 और हेड्रॉन मीन्स ट्राइंगल। सो ये ग्रीक वर्ड है, सो ये टेट्राहेड्रॉन है। और ये सबसे स्ट्रांग है 3D में। जैसे हम लोगों ने देखा कि 2D में सबसे स्ट्रांग है त्रिकोण, वैसे ये जो टेट्राहेड्रॉन है सबसे स्ट्रांग है 3D में। तो इस तरीके का हम अलग अलग शेप्स बना के बच्चों को दिखा सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। और ये जो वॉल ट्यूब का पैकेट होता है, ये 50 या 60 रुपए में 50 फीट मिलता है। मतलब इतना ज्यादा हमें वॉल ट्यूब मिल सकता है। और 1 रुपए की एक माचिस की डब्बी अगर हम लोग लेंगे तो उसके अंदर अराउंड 35 से लेके 45 के बीच में माचिस की तिलियां होती है। और बस उस तरीके से हम लोग अगर बच्चों को देंगे ना, तो ये सभी एक एक बच्चा ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोन बना सकता है और उसके बारे में देख सकता है, सीख सकता है। तो इस तरीके का एक सिंपल मैस्टिक मॉडल का एक थोड़ा सा आपको डेमो। हाँ, ये मेरे पास जनरेटर है। हमारे पास जो करंट आता है उसे एसी करंट बोलते हैं। एसी मीन्स अल्टरनेट करंट। सो ये एसी करंट का बहुत ही बढ़िया मॉडल है। यहाँ पर 2 मैग्नेट है, नियोडियम मैग्नेट इसे बोलते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है कि मोबाइल, कैमरा, टीवी अगर हम लोग इसके पास रख देंगे तो वो डैमेज कर देंगे। मोबाइल, कैमरा सब डैमेज हो जाएगा, कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तो ऐसे पावरफुल 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, नियोडियम मैग्नेट बोलते हैं इसे। ये पूरा जो मॉडल है इसे बोलते हैं जनरेटर। तो ये क्रैंक जनरेटर के नाम से है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर 1 2 3 करके हमने ऐसे 1000 टन ले, नंबर ऑफ टन, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा। तो ऐसे घुमा आपको, इसके ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न देना है। तो नंबर ऑफ टर्न 1000 दिया और यहाँ पर हम लोगों ने उसके दो एंड है, वो एक एलईडी को अटैच कर दिया। एलईडी छोटा सा बल्ब है और यहाँ पर 2 एलईडी यहाँ पर अटैच कर दिया। और हम लोग अगर इसे घुमाते हैं तो देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दोनों एलईडी में लाइट लगता है। तो इसे बोलते हैं एसी करंट, अल्टरनेट करंट। तो दोनों ऐसे घुमाएंगे उल्टा तो भी लाइट मिलता है और इस तरीके से घुमाएंगे तो भी लाइट। अगर ये डीसी होता तो डीसी ओनली 1 वे मिलता। और इसकी लाइट है अगर बंद चालू भी हो रही है, आप देख रहे थे, ये एसी करंट है। और अंदर वाले मैग्नेट देखिए,
ये 2 खराब सीढ़ियां हैं जो आपस में जोड़ दी, एक बड़ी सी पुली बना दी। ये टीवी टेप रिपेयर करते हैं उनके पास मिलती है ऐसी पुली, तो ये लगा दी। और इस तरीके से हमें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एक जनरेटर बना दिया। तो इस जनरेटर को अगर हम लोगों ने देखा कि बहुत ही आसानी से ये वर्क होता है और एसी करंट पैदा करता है। इसके अपोजिट है डीसी करंट। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। तो देखिए यहाँ पर एक डायरेक्ट करंट का एक मॉडल है, एक बैटरी है और इसके बाजू में 2 सेफ्टी पिन लगाए, यहाँ पर 2 मैग्नेट है और एक कॉपर वायर है। अगर कॉपर वायर का जो कॉइल बनाया है, कॉइल इसके ऊपर रखते हैं और इसे थोड़ा सा अगर जर्क देता है या टॉर्क देते हैं तो ये बहुत आसानी से ये मोटर जो घूम रही है। कम से कम हमारे घर में हम आधा डजन से ज्यादा मोटर इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहाँ इस्तेमाल होता है, मिक्सी में मोटर है, कूलर में मोटर है, फैन में मोटर है, ऐसे टॉय जो घर में बच्चे जो खेलते हैं रिमोट के ऊपर, वो सभी में मोटर है। तो इस तरीके का बहुत ही बढ़िया ये डीसी मोटर है, डायरेक्ट करंट। अगर हम लोगों ने इसके ऊपर मैग्नेट रख दिया तो क्या होता है, देखिए अगर हमने इसे मैग्नेट लिए और 4 मैग्नेट इसके ऊपर हमने ऐसे पकड़ा, तब इसकी स्पीड ना बहुत बढ़ गई, स्पीड निकाल लिया तो स्पीड इसकी कम हो गई। फिर इस मैग्नेट को उल्टा कर देते, इसके पोल चेंज कर दिया और अब इसके पास लेके आते, टच नहीं कर रहे तो इसका स्पीड बहुत कम हो गया। देखिए फिर मैग्नेट हटाया तो स्पीड आ गया, फिर से इसके पास में लेके आए तो और आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर भी, जैसे मैं मैग्नेट इसके पास ला रहा हूँ तो देखिए जो है स्क्रीन के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके का ये डीसी मोटर है, डायरेक्ट करंट। क्यों ऐसे हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैग्नेट है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ये जो कॉइल है ना, कॉइल के अंदर भी पूरा करंट बह रहा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कन्वर्ट होती है कॉइल। और इसका नॉर्थ और इसका साउथ जब एक पल्स मिलता है, एक टॉर्क मिलता है, तो ये मोटर कंटिन्यू चालू होती है। लेकिन ऊपर वाला जब मैग्नेट आता है तो ये मैग्नेट और ये वाला मैग्नेट दोनों में जब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ बन जाते हैं तो वहां पर रिपल्शन हो जाता है, मोशन ही मिलता है। जब उल्टे करते हैं तो चालू होता है, फास्ट घूमता है, क्योंकि वहां पर भी एक पोल और एक ऐसा ही अपोजिट पोल आ जाता है और उसके कारण ये रोटेट होता है। तो इस तरीके के अगर नई बैटरी लेंगे हम लोग तो ये 3.5 घंटा चलेगी। तो इस तरीके का बहुत ही बढ़िया ये डीसी मोटर का मॉडल है। आई होप आप लोगों को ये सभी एक्टिविटी अच्छी लगी हो। लास्ट टाइम बेस्ट एक देखते हैं और इसी के साथ हम लोग ये देखिए एक Yes, sir. ये जेकब लैडर है और अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये बहुत ही अच्छा तरीके से ये ओपन होते होते जाता है। और अभी ये एक देखते, बस एक बहुत बढ़िया का है फैन क्रेन। हमने एक फैन क्रेन बनाया और इतने आसानी से बच्चे रोज सुबह अगर इस फैन क्रेन के साथ खेलेंगे ना तो हमें लंग्स का एक बहुत ही बढ़िया मॉडल मिल जाएगा और हम लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पायरोमीटर होता है ना, वैसे ये बस इस क्रेन के ऊपर फूंक मारना है यहाँ पर और ये बकेट जो है नीचे वाला, ये पूरा बकेट ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके और इस पूरा बकेट ऊपर आ गया। अगर इसे थोड़ा सा हमने घुमाया तो बकेट नीचे जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक सिंपल लंग्स की कैपेसिटी हमारी देखने के लिए, हमें बहुत अच्छे से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक जरिया है जिसे हम लोग रोज सुबह 10 मिनट के लिए कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम लोग हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है और लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो आपण इकडे थांबूया का? Sir, your sound is very low. ओके, साउंड कम हो गया है, अभी आवाज आ रहा है? नहीं, अभी भी कम है सर. सर फॅन क्रेनच्या आधी दाखवलं ते काय होतं जरा परत एकदा दाखवाल का? मॅग्नेटच्या आधी फॅन क्रेन हा हे फॅन क्रेन आहे, हे वाले. त्याच्या आधी एक दाखवलेलं ते फ्लिप झालेलं त्याच्यातनं फ्लावर्स दिसले काहीतरी ते पटकन कळलं नाही काय त्याचं काय नाव आहे? हा ह्याचं नाव आहे जेकब लॅडर आणि काय नाव आहे याचं?
जेकब लैडर, जेकब लैडर, जेकब ओके, ओके. जिसने इन्वेंट किया उसका नाम है जेकब और लैडर ओके. मीन्स सीढ़ी. हा, कळलं. थँक्यू सर. सर आय थिंक तुमचं एवढा वेळ व्यवस्थित येत होता पण आता परत खूपच स्लो झालाय आवाज. काय नेटवर्कचा इश्यू आहे का? नाही, नेटवर्क तर चांगलं आहे इकडे ऐकायला येत नाहीये सर. आणि आवाज तर फुल आहे, नेटवर्क तर एकदम चांगला आहे. आता येत आहे बट तेवढं म्हणजे जास्त येत नाही, थोडंफार येत आहे. एकदम कमी आहे. ओके. सो हे एक बलून गाडी आहे, जोराने बोलावं लागेल. बलून कार बनवलेली आहे. आणि ही जी बलूनची गाड़ी है तर ही न्यूटन थर्ड लॉ वरती आधारित आहे. सो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ. सो उसके बेस के ऊपर ये गाड़ी बनाई. सर मॅग्नेट माईकच्या बाजूला नाहीये ना? नाहीये, बाजूला बरोबर. ठेवलेले आहेत, अगदी अजून मी बाजूला लांब ठेवतो कारण ते आधीपासूनच बाजूला खाली ठेवले. आता येतोय ना आवाज? हॅलो, ऑडिबल आहे का? आवाज येतोय? सर खूप स्लो येत आहे. हॅलो, ओके. स्पेस So, वर मी थोडं सर आवाज नाही येत आहे. आता आवाज येतोय का? हा एकदम स्लो आहे पण. आता बिलकुल नाही येत. हो, नाही एकच मिनिट, बोलत नाही अजून. तुम्ही परत कनेक्ट करा ना. ठीक आहे, मी परत कनेक्ट करतो. थँक्यू. आवाज येतोय? येस सर. येतोय. थँक्यू. थँक्यू तुम्हाला. ओके. सो हा एक जो मगाशी बघितला अपन तो जेकब लैडर ये नाम से है. सो ये देखिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें ऐसे 9 कार्ड्स अटैच किए, बहुत लंबा है ये. और हम लोग अगर इसे ऐसे फ्लैप कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये बंद चालू हो जाता है. और अभी ये जो पैंडेमिक था तो उसमें हम लोगों ने अलग अलग मैसेज इसके अंदर डाले थे, जैसे ये फ्लावर दिखाई दे रहे हैं आपको अलग अलग कलर के. तो इसके अंदर हमने अलग अलग मैसेज बच्चों को दिया था कि हाथ धोना है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है. तो इस तरीके से ये हर एक स्टिकर के ऊपर ये जो अलग अलग कार्ड दिख रहे हैं, कार्ड के ऊपर ऐसे मैसेज डाल के एक स्कूल के साथ हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे बनाए. और इसके लिए थोड़ा सा अलग से एक अलग एक्टिविटी कर. तो ये एक था. और ये वाला अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये बलून कार है. ये बलून कार है. तो इस बलून कार में यहाँ पर ये 2 व्हील लगाए, यहाँ पर 2 व्हील लगा दिए और यहाँ पर एक रबर बैंड के माध्यम से एक बलून अटैच कर दिया स्ट्रॉ को. और स्ट्रॉ में हमें ब्लो करना है इस तरीके से. और इससे होल्ड करने के बाद हमें यहाँ छोड़ना है. तो ये बहुत ही गाड़ी जो है ना बहुत स्ट्रांगली मूव होगी और न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर दिखाई देगा. तो इस तरीके का बहुत ही बढ़िया ये फरारी है या बलून कार है. एक बर्नौली का पंप है, बर्नौली का. एक 2 स्ट्रॉ लिए, 2 स्ट्रॉ को सिर्फ ऐसे अटैच करना है कि ये वाला अगर इसका इनर डायमीटर है इस स्ट्रॉ का और दूसरे स्ट्रॉ का इनर डायमीटर, ये वाले स्ट्रॉ का इनर डायमीटर जो है ना हाफ कवर करेगा ये स्ट्रॉ. सो ऐसे ही आपको अटैच करना है लाइक दिस.
सो हाफ आपका इस स्ट्रॉ का जो इनर डायमीटर है ना, हाफ स्ट्रॉ ये वाला कवर करेगा था कि ये ऐसे 90 डिग्री में रहेगा तो ऐसा आएगा, ऐसे नहीं आ रहा है, ये नीचे से आके आधा इसको कवर कर रहा है इस स्ट्रॉ को। अगर ऐसे हम लोग लगा देंगे तो ही हमारा वर्क होगा। तो हमने ऐसे लगा दिया है, और ये रबर लगा, इरेजर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, और टेप से हमने अटैच कर दिया, बांध दिया। अभी अगर ग्रीन वाला स्ट्रॉ हम पानी में रखेंगे और इसमें ब्लो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक फवारा मिलेगा, और इंटरेस्टिंग ये फवारा बन जाएगा। जस्ट छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। आई होप कि आपको दिखाई दे। ये इसे पानी में रखना है और जोर से फूंक मारना है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया इसमें से पानी जा रहा है, लेकिन वो पूरा फवारा के इसमें जा रहा है। अगर हम लोग इसमें ये उल्टा रख देंगे, ऑरेंज वाला अंदर रखेंगे और ग्रीन वाले में ब्लो करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, कितनी ही जोर से ब्लो करो इसमें से कुछ होगा ही नहीं। बट जैसे ही ग्रीन वाला अंदर रखते हैं और ऑरेंज वाले से ब्लो करते हैं तो ये यहाँ पर हमें ऐसे फवारा मिल जाएगा। तो ये एक बर्नौली का सिद्धांत है। बर्नौली ने कहा कि हाई वेलोसिटी मीन्स लो प्रेशर। तो यहाँ पर, यहाँ इस जोन में का, यहाँ अगर आप देख रहे हैं इस यहाँ का, ये इस एरिया का, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है और नीचे वाला हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ आता है, और ये जो फवारा चल रहा है, जो हम ब्लो कर रहे हैं, तो उसके कारण जो भी पानी यहाँ आ रहा है उसे आगे ढकलने का काम कर रहा है, और वो भी एकदम छोटे से पार्टिकल, क्योंकि पानी जस्ट यहाँ पर आके रुक जाता है। तो इस तरीके का एक हमें सिंपल सा टॉय मिल गया। ये एक बहुत ही बढ़िया फूड चेन बनाया। देखिए ये जो एक पार्ट है इसका टेट्राहेड्रॉन है, और टेट्राहेड्रॉन जो हम लोगों ने देखा, ये वाला, ये जो टेट्राहेड्रॉन देखा, वैसे ही टेट्राहेड्रॉन पेपर में बनाया, और ये 6 टेट्राहेड्रॉन जब इसे अटैच कर दिया तो ये बहुत ही बढ़िया ये फ्लेक्सिगॉन बन गया। और इस फ्लेक्सिगॉन को अगर हम लोग रोटेट करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से ये घूमता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को फ्रॉग आता है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। सो इस तरीके से ये फूड चेन बन गई, बटरफ्लाई, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। और अंदर बाहर किसी भी तरफ आप इसे फोल्ड कर सकते हो। पेपर ये खराब नहीं होता है, और आप इस तरीके से इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके ऊपर अलग अलग ड्राइंग निकाल सकते हैं, जल चक्र निकाल सकते हो, ये फूड चेन हो गया, कैलेंडर बना सकते हो, और अलग अलग इस तरीके से इसे आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये एक ऐसे डिस्क है जो आजकल नई युग का नया कचरा है, सीडी। तो अभी सीडी तो कोई इस्तेमाल भी नहीं करता है, लेकिन एक समय था कि सीडी का बहुत इस्तेमाल था। सीडी और डीवीडी, ऐसे सभी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते थे। बट ये सीडी के ऊपर हमने एक ऐसे अलग अलग पैटर्न लगा दिए, और यहाँ पर एक मार्बल लगा दिया। अगर हमने इस मार्बल का एक छोटा सा पार्ट अगर आप देख पा रहे हो, तो ये नीचे भी आया है, देखिए छोटा सा एक पार्ट ना नीचे आया है। तो ये वाला पार्ट ना नीचे टेबल को या हमारे सरफेस पर पहले टच हो जाता है, और वहां हम लोग कुछ भी अगर थोड़ा सा घुमाएंगे इसे, तो ये अगर मान लो ऐसे हमने रखा और यहाँ अगर घुमाने का प्रयास किया, तो ये नीचे वाला पहले टच हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और उसके कारण ये बहुत ही कम फ्रिक्शन में बहुत अच्छे से रोटेट हो जाएगा। ये देखिए घूम रहा है, और ये टॉप बन जाएगा, सीडी टॉप। फ्रिक्शन लेस है और इनर्शिया बहुत ही ज्यादा है, और इस तरीके से ये टॉप बन गया। बट ये जो टॉप है ये इल्यूजन वाला टॉप है। अगर हमने ऊपर से देखा इसे, और हमारे घर में जो ये लाइट है, ये फ्लिकरिंग लाइट है, इसके कारण ये इसके ऊपर जो डॉट है, ये डॉट बड़े ऐसे छोटे 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 अंदर लगा दिया, और ये कुछ ऐसे इस तरीके से रोटेट होता है, कुछ उसके ऑपोजिट रोटेट होता है। तो ये भी इल्यूजन बन जाएगा इसमें। फिर दूसरे वाले में भी सेम ऐसे ही अलग से पैटर्न मिल जाएगा।
तो हर एक अलग अलग पैटर्न के अलग अलग ऐसे ये 3D टॉप बना दिया। तो ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बना सकते हो, या बच्चे ही खुद को कुछ पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे 3D टॉप बना सकते हैं। तो आप लोगों को बताइए कि कौन सा खिलौना अच्छा लगा और आपका फीडबैक दीजिए और बताइए। सर आपके सारे खिलौने अच्छे थे, अभी इसमें से कैसे ढूंढेंगे? सर वो भी एक है। सर अच्छा, आपका share and सबसे sound wave, ओके। मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आपका वो लास्ट वाला जो था ना, टेट्रा, वो जो फूड चेन वाला था, जी बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे को मेरा बचपन याद आ गया सर उसमें, हम लोग भी ऐसे कुछ करते थे। सब अच्छे लगे, ओके, हाँ। थैंक यू। और फुवारा भी इंटरेस्टिंग थिंग था, आई वाज रियली अमेज्ड। आई एम श्योर तो सारे टीचर्स को सबको अच्छा लगा रहेगा। एक दो मॅजिक वाले दिखाते टीचर को और यहीं पर हम लोग रुकते। ओके, सगळेच खूप छान होते। ओके, धन्यवाद, चांगले आहे। तो हे बघा एक जादूची स्टिक आहे, मैजिक जस्ट अकेले। तो ये एक स्टिक है, जैसे चाहे वैसे हम लोग इसे फोल्ड कर सकते हैं और बस एक मंत्र बोलना है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तो हमारे जैसे हाथ में डंडा होता है ना, टीचर के हाथ में एक छड़ी होती है, तो उस तरीके का एक छड़ी बन गया, डंडा बन गया ये, और बस टूटता नहीं है, एकदम स्ट्रांग बन जाता है। कहीं पर भी आप पकड़ सकते हो और इसे ऐसे स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन फिर से 1 2 3 बोला तो ये टूट जाएगा और जैसे चाहे वैसे इसे हम लोग फोल्ड करके रख सकते हैं, है ना? तर ह्याच्या मागचं कारण काय ते आपण बघूया। आपण काही जादूगार नाहीये आणि जादूगार जादू दाखवत असतात, जादू नसते, हेच आम्ही मुलांना सांगतो। तर ह्याच्या आतमध्ये पीवीसी पाइप के पीसेस आहेत आणि प्लास्टिकच्या पट्टीला अटैच केलेले आहेत। अगर आप लोगों ने कभी साइकिल की जो चेन होती है, अगर निकाल के देखा और उसमें बहुत सारे यूनिट होते, छोटे छोटे टुकड़े होते, अगर कभी निकाला और इसे थोड़ा सा हाथ में पकड़ के ट्विस्ट किया ना, तो वो आपको पता चलेगा कि वो साइकिल की चेन भी ना इंटरलॉक होके सीधी खड़ी हो सकती है। तो सेम वैसा ही इसमें इंटरलॉक हो जाता है पीवीसी पाइप के पीसेस का। मैं ऐसे एक तरफ फोल्ड कर रहा हूँ ऊपर की तरफ और नीचे से पीवीसी पाइप के पीसेस पास पास आके एक पूरा पाइप बन जाता है। आप कहीं पर भी पकड़ सकते हैं और बस हमें अगर इसके टुकड़े बनाने हैं तो किसी एक तरफ ऐसे फोल्ड करना है, ट्विस्ट करना है थोड़ा सा। तो बस इसका ट्रिक है ये। और इस तरीके के मैजिशियन आते हैं और मैजिक दिखाते हैं, हम लोगों को लगता है अरे क्या मैजिक है, लेकिन मैजिक असल में होती ही नाही। तशीच एक लास्ट टाइम बेस्ट हे पैशाची आहे। सरांकडे भरपूर पैसे आहेत आणि यांचे पैसे थोडे आपण काढून घेऊया। तर हे बघा असे इकडे जर फूंक मारलं, काहीच नाहीये, परत फूंक मारूया, काही नाहीये आणि हातावर 2 वेळा मारलं की सरांचे पैसे सगळे आपल्याकडे आले। हजाराच्या नोट आहेत सगळ्या सरांकडे, वाह। कडक कडक। तो इस तरीके से इसमें सब पैसे दिखाई दे रहे हैं हाथ के ऊपर मारने से। और फिर 2 बार हाथ के ऊपर मारा, फूंक मारा, पैसे गायब, कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखिए व्हाइट पेपर है पूरा। तो इसमें एक ट्रिक क्या क्या है, ये वाला तो बंद है, इसमें ऐसे प्रिंट है, प्रिंट है, प्रिंट नहीं है, प्रिंट है, प्रिंट नहीं, अल्टरनेट पेजेस है और इसमें क्रॉस कटिंग है। हमें 90 डिग्री का ऊपर वाला जो कॉर्नर पकड़ते हैं तो व्हाइट पेपर दिखाई देता है। जब ऊपर वाला 90 डिग्री का कॉर्नर पकड़ते हैं तो व्हाइट पेपर दिखाई देता है। जब हम लोग नीचे का कॉर्नर पकड़ते हैं तो हमें पैसे दिखाई देते हैं। बस यही ट्रिक है, नहीं तो हम हाथ के ऊपर मार मार के हाथ लाल हो जाएगा लेकिन पैसे नहीं जाएंगे। तो ये ट्रिक हम लोगों को अगर पता चले तो हम भी ऐसे बच्चों के सामने या बच्चे कर सकते हैं और इसके पीछे का जो भी रीजन है वो बच्चों को पता चलता है। तो हमें बेसिकली इसका ये मकसद था कि जो बच्चों को लगता है कि मैजिशियन मैजिक दिखाता है या उसके कारण बच्चों के दिल में जो भी डर रहता है या ज्याला आपण म्हणतो अंधश्रद्धा मुलांच्या मनात असतात, तर त्या या खेळण्यातून दूर होऊ शकतात। थँक्यू सर, थँक्यू। शिवाजी सर, थैंक यू सो मच। सीरियसली आप जैसे, एक मिनट सर, जिस तरह से आप समझाते हो ना साइंस में, जिसको नहीं भी रुचि हो ना उसको भी रुचि आ जाएगी सर, बहुत अच्छी तरह। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा है सर। आई एम श्योर मेरा फीडबैक के बदले कोई टीचर जिसको फीडबैक देना हो या कुछ बात करना हो, प्लीज टीचर्स, हाँ नक्की नक्की, तुमचा पण कोणाचा फीडबॅक असेल तर नक्की द्या। टीचर्स, एक तो ऑफकोर्स फीडबैक फॉर्म तो भरना ही है आपको, ताकि वो
जो टीचर शर्माते हैं, बोल नहीं सकते, दे कैन फिल द फीडबैक फॉर्म। लेकिन कोई टीचर को अगर कुछ बोलना है, पूछना है, तो माइक इज ओपन नाउ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम पहले बोलिए सर, आप नाम और आपका। मेरा नाम प्रभाकर काकडे है, औरंगाबाद। अच्छा, ओके सर। सर याचे काही व्हिडिओज आहेत का आपल्याकडे? अहो सर, तुफान, तुम्ही म्हणाल तेवढे व्हिडिओ बरं, युट्यूबला अरविंद गुप्ता toys.com जर युट्यूब वरती बघितला तर तुम्हाला इतके व्हिडिओ मिळतील सर। तुम्हाला जी लँग्वेज तुमची कम्फर्टेबल आहे त्या लँग्वेज मध्ये 18 भाषामध्ये त्याचे व्हिडिओ आहेत, तुम्ही आणि ते डाउनलोड करू शकताय, बघू शकताय। ओके, आणि या टॉयज कशा बनवायचे त्याचे पण आयडियाज आहेत का? अगदी अगदी, टॉयज कशा बनवायचे त्याचेच व्हिडिओ आहेत सर वेबसाईटवर, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे व्हिडिओ काही नाहीत। म्हणजे त्याच्या मागचं सायन्स म्हणा किंवा त्याच्या मागची थिअरी त्याचे व्हिडिओ नाहीयेत, पण टॉयज कसे बनवायचे त्याचे आपण अशा वेगळ्या पद्धतीने आणि समजेल अशा सिंपल पद्धतीने ते व्हिडिओ बनवले आणि हाय डीपीआय मध्ये ते व्हिडिओ तुम्हाला तिथे युट्यूबला मिळतील सर। अरविंद गुप्ता toys.com। ओके, थँक्यू सर। आपल्या ह्याच्यामध्ये मेसेज मध्ये पण मॅडमने ते लिंक पाठवले बघा, ते वेबसाईटचा ऍड्रेस पाठवलेला आहे। परत असा एखादा सेमिनार घेण्यात यावं आणि त्यावेळेला मात्र आम्ही जास्तीत जास्त शिक्षकांना जॉईन करू शकू, एवढंच आज सांगता येईल। खूप खूप छान, धन्यवाद सर। नक्कीच असं करता येईल आणि हे खरं सांगू का, म्हणजे आता हे आहेच म्हणा की एक हे माध्यम आहे की आपल्याला कमी वेळात घरी बसल्या पण याचा वापर करता येतो। पण जर आमची कार्यशाळा जर बघितलात आणि जर ऑफलाईन घेतलात आणि 1 दिवसाची नाही, आम्ही 3 दिवसाची कार्यशाळा घेतो आणि आज सुद्धा मी मेकर मध्ये एका शाळेमध्ये 3 दिवसाच्या कार्यक्रमाला आलेलो आहे आणि इकडनंच मी तुम्हाला हे दाखवतो, सेशन घेतोय। सो आपण असं जर घेतलं ऑफलाईन तर त्याचा ना इम्पॅक्ट इतका चांगला होतो सर आणि फार डेप्थ मध्ये शिकायला मिळतं। ओके, औरंगाबादला येऊ शकता आपण? अहो सर, तुम्ही बोलवा, आपण महाराष्ट्राच्या प्रत्येक टोकावरती कुठेही जाऊ शकतो। ओके ओके। आणि दळवी फाउंडेशन आहेच ना आपल्याला, दळवी फाउंडेशनला घेऊ की मध्ये आपण। सर, दळवी फाउंडेशनचं खूप खूप धन्यवाद। त्यांनी एक चांगली संधी आपल्या फाउंडेशनच्या मार्फत आम्हा शिक्षकांना उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल दळवी फाउंडेशनचे सुद्धा धन्यवाद। आणि पुन्हा एकदा अशाच एका छान मेजवानीची आम्ही वाट बघतोय। थँक्यू सर, छान फीडबॅक दिला, धन्यवाद, बरं वाटलं। थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच। आणि कोणाला काय बोलायचं आहे का? येस सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये सेकंड टाइम इनका वर्कशॉप देख रही हूँ, वेबिनार। इसमें से अरविंद गुप्ता जी का मैंने एक अपने बच्चों को ऑनलाइन में बॉटल रॉकेट सिखाया था एज एन एक्टिविटी ऑफ वन ऑफ माय लेटर आर, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया था और बहुत मजे किए थे। घर पे ऑनलाइन थे ना सब, तो बहुत मजा आया था उनको। बॉटल रॉकेट सिखाया था मैंने। बढ़िया 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 सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं तो बोल रहा हूँ साइंस को ऐसे ही सिखाया जाना है। ये टेक्स्ट बुक पे मेरे को सीरियसली मेरे को कभी लग रहा है कि जब मैं स्कूल में था और हमको टेक्स्ट बुक और थियोरेटिकल सब पढ़ाकर और काफी कुछ हमको इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया था हमारे पे कि बस इमेजिन करो। ऐसे अगर ऐसे प्रैक्टिकल अगर कुछ दिखाया जाए तो कितना फर्क पड़ जाता है अंडरस्टैंडिंग में। जो सब्जेक्ट की तरफ जो रुचि होती है वो बढ़ जाती है, एक समझदारी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कंसेप्ट की, वो कितना आसान हो जाता है समझना। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप सर, शिवाजी सर, सुपर सर, थैंक यू। हॅलो, हाँ बोला मॅडम। नमस्कार सर, खूप खूप धन्यवाद दळवी फाउंडेशनचे। खूप छान मेजवानी होती ही सुट्टी सुरू होण्या अगोदर। जस्ट लाईक समर वेकेशन्स मुलांना असतात ना, तसे मोठ्यांसाठी ही छान मेजवानी होती सर। बालपणाच्या आठवणी खूप ताज्या झाल्या आणि खूप बेसिक इतकं सुंदर होतं सर। फवारे वगैरे मारणं, म्हणजे माणूस कधी रागाने रुसला तर फवारे मारून कसा नाकावरचा राग जाणार कसा, म्हणजे मुले रुसली आपण इझिली त्यांना कन्व्हिन्स करतो। मॅडम असा फवारा मारल्यावर त्या राग आलेल्या माणसाला अजून राग येतं, काय करते नेमकं म्हणून मुलांना पण कळेल ना की मम्मी कामातनं पण मुलांना थोडासा वेळ देऊन मुलं थोडीशी शिकू शकतात। कारण की फक्त महागडे असे गेम जॉईन करून किंवा काय हे करून मुलांना टाइम आउट करून पण थोडंसं स्वतः पण शिकू शकतात ना। स्वतः अचिव्हमेंट करून शिकणं हे पण त्यामागे खूप हे असतं ना सर। अगदी, आणि त्याच्यातनं ना एक वेगळा आनंद असतो सर।
बरोबर आहे. याच्यात वेगवेगळ्या गोष्टी बरेच आपण शिकतो. एकतर मार्केटमधनं वस्तू खरेदी करण्यापासून तर ते एक्सपेरिमेंट बनवण्यापर्यंत. तर हो आपण हो सर. ह्याच्यामधल्या फार गोष्टी आपल्याला पहिलू माहिती होतात आणि फायनली जेव्हा ते प्रोडक्ट बनतं ना आपल्या हातनं, ते त्याच्यासारखा आनंद दुसरा कुठलाच नसतो आणि मग फार मुलं आनंदी होतात आणि छान इंटरेस्टिंग त्यांना ती माहिती मिळून जाते. खूप खूप थँक्यू सर. पुन्हा असा एक सेमिनार असेल तर खरंच आम्ही खूप जॉईन होऊ. नक्की मॅडम. शिक्षकांतर्फे तुम्हाला खरंच मनापासून धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. Okay, Sir, and- so Sir, can I say something? yes, Yes, yes. Yeah. सर ये जो एक्टिविटी, ये जो इन्होंने टॉयज दिखाया है ना, ये जब हम लेसन में ऐड करते हैं ना तो बच्चे और मजे से करते हैं। Exactly. ये मैंने पूरे हम्म। पेंडेमिक में सीखा कि इनके टॉयज वो तो बनाते ही हाथ से, बट वो लेसन भी उनका थरर हो जाता है क्योंकि Yes, वो ma'am. एंजॉय करके खुद बनाते हैं और एंजॉय भी करते हैं बनाते बनाते, और कुछ नया सीखने को मिलता है व्हेन वी ऐड इट एज एन एक्टिविटी। नहीं, सही बात है. Yes. आई एग्री विद. मेरे को जो बर्नौलीज प्रिंसिपल मेरे को याद है जब मैं स्कूल में पढ़ा था. लाइफ में मैं समझ नहीं पड़ा था बर्नौली. आज मेरे को समझ पड़ा बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे होता है. वो ऐसे लो प्रेशर, हाई प्रेशर एट द बॉटम, उसके जैसे पानी ऊपर. आई मीन एक प्रैक्टिकल देखने का तो उसका जो वो प्रिंसिपल का जो क्या यूज है वो आज प्रैक्टिकल समझ पड़ा. बहुत अच्छा कर रहे हो सर आप. यस सर, Thank you, सब sir. किताबें पढ़ना और प्रैक्टिकल जब करते हैं तो हाँ. बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली. Yes. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थँक्यू. Thank you, ma'am. Okay. ओके. Hello, sir. Hello, sir. हाँ बोला मॅडम, बोला. So first of all, thank you, SR Dalvi Foundation as well as you, sir, also, शिवाजी सर. सर you, मला ma'am. एक सांगावं असं वाटतंय की जे तुम्ही आता आम्हाला सायन्स आणि मॅथ्सचं थोडंसं सांगितलं, जसे टॉईज दाखवले, तर अजून तसंच हिस्ट्री, इव्हन जॉग्राफी, त्यांचे सुद्धा आम्हाला असे टॉईज जर दाखवले तर तो खरंच खूपच आनंद होईल असं मला वाटते. खरंच हा आमच्यासाठी पण एक चांगला फीडबॅक आहे. खरंच जॉग्राफी वरती म्हणा किंवा हिस्ट्री वरती म्हणा असे जास्त काही म्हणजे हे टॉपिक वरती ना हे असे एक्सपेरिमेंट बनवणं थोडं हे आहे, म्हणजे किचकट आहे. पण आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि याच्यावरती काही आता काम चालू आहे आणि नक्कीच नेक्स्ट टाइमला जेव्हा आपण दळवी फाउंडेशन थ्रू जेव्हा आपण असं सेमिनार घेऊ, त्या सेमिनार मध्ये आपण असे पण काही एक्सपेरिमेंट नक्की ऍड करू. थँक्यू सर. आणि सर तसंच तुमचं जे युट्यूब चॅनल आहे, जे तुम्ही म्हणाले की टॉईज जे बनवतो त्याचं युट्यूब त्याचं प्लीज जरा चॅट बॉक्स वर टाकाल का सर? म्हणजे जरा अरविंद गुप्ता मॅडम मेसेज मध्ये टाकलेलं ना, arvindguptatoys.com ही जी वेबसाईट आहे त्याच वेबसाईट वरती ह्या सगळे फिल्म आहेत. तुम्ही प्रत्येक खेळण्याला क्लिक केला तर त्या खेळण्याच्या एंडला जर गेलात फोटोच्या खाली, सो तिथे 1 मिनिट 2 मिनिट अशा फिल्म म्हणून दिले, लिंक दिलेले, ते डायरेक्ट तुम्ही युट्यूबला जाल किंवा युट्यूब वरती अरविंद गुप्ता टॉयज म्हणून जरी सर्च केला तरी तुम्हाला ती फिल्म मिळते. ओके सर, ओके सर. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. ओके, सो 7:30 बजने को आए. डिनर टाइम हो गया सब लोग का. लक्ष्मी, यू वांट टू वाइंड अप? Sure, sir. थँक्यू सो मच शिवाजी सर. खरंच जसे नयन सर आणि बाकी सगळे बोलत होते, खरंच एक टुक अस बॅक टू आवर चाइल्डहुड डेज आणि बऱ्याच काही गोष्टी आज परत शिकायला मिळाल्या ऍज अ स्टुडंट अटेंडिंग दिस वेबिनार. अँड आय एम शुअर बाकीचे जेवढे टीचर्स आहेत दे आर टेकिंग अवे अ व्हेरी रिच लर्निंग फ्रॉम टुडेज सेशन. थँक्यू सो मच. परत पूर्ण SR दळवी आणि बाकी सगळे टीचर्स कडनं खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही आज फॅसिलिटेटर म्हणून आलात आणि एवढे सगळ्यांना सपोर्ट केलात. आय होप अजून लवकरात लवकर ऑफलाईन ही आपण सेशन्स करू सगळ्या टीचरांसाठी. अँड थँक्यू सो मच सगळ्या टीचर्सना की तुम्ही आज जॉईन झालात या सेशनसाठी. अ काइंड रिक्वेस्ट की तुम्ही आज जे 1.5 तास आमच्या बरोबर जॉईन झालेले आहात या सेशनसाठी, त्यासाठी तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळणार आहे आणि ते सर्टिफिकेटसाठी फीडबॅक फॉर्म नक्कीच भरा, ज्याचं लिंक आम्ही आता पोस्ट करतोय चॅट बॉक्स मध्ये, पोस्ट आधीही केलेले आहोत. तर नक्कीच त्याच्यात जाऊन तुम्ही फीडबॅक फॉर्म भरा. स्पीकर आय मीन आपले सरांबद्दल, शिवाजी सरांसाठी काही 2 शब्द लिहा त्याच्यात. आम्ही नक्कीच त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचू. आणि टीचर टॉक ऍप जे स्टार्टिंग मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, जे एक ऑनलाईन कम्युनिटी आहे टीचरसाठी, नक्कीच त्याच्यात तुम्ही जॉईन व्हा, डाउनलोड करा, जॉईन व्हा आणि 3 दिवसाच्या आत तुम्हाला तुमचं सर्टिफिकेट त्याच्यात मिळेल.
सर्टिफिकेट कसं डाउनलोड करायचं आहे ते सगळे डिटेल्स तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सअप नंबर आणि मेल आयडी वर मिळणारच आहे. तुम्ही त्या स्टेप्स नक्की फॉलो करा आणि आपले सर्टिफिकेट डाउनलोड करा. उद्या परत आपले सेशन्स आहेत, त्याचेही डिटेल्स तुम्हाला व्हॉट्सअपवर ऑलरेडी पाठवलेत. नक्की बघा आणि नक्की जॉईन करा. We'll be more than happy to again see all of you all for tomorrow's session. Thank you so much. Thank you. सोनाली मॅम, तुम्हाला काय बोलायचं आहे का? Am I audible, ma'am? Yes, yes. Okay. Good evening, Nayanta. Actually, I am a dentist, so I can't keep on my video on. But to the surprise, that dentist said कि ऐसे भी सिखाया जा सकता है स्कूलों में. That is a great remark I think I have received from him. And really, as Nayan sir said, not only science teacher, other subject teachers also means itna interesting it was ki like most of the time we keep video off and see. I was today like मैं अभी ऑन करूँ के ये करूँ के वो करूँ के कितना सर सिखा रहे थे. That tides, I think standard 8 tides lesson entirely sir covered through that particular teaching aid. And as the teachers we always break our heads for those new innovative teaching aids. So I think this is the most beautiful learning platform is SRLV Foundation and this Teacher Talk app, and of course Nayan sir is always takes initiative in all these things. So very innovative and learning. I will definitely try out in this next academic year. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And thank you to Shivaji sir. Thank you, Or Shivaji. Yes. I hope you are doing good at your dentist. और ध्यान Even देना, he डेंटिस्ट को learned. वीडियो दिखाने बैठेंगे तो आपका और हाँ. कुछ हो जाए. He learned. He said कि ऐसे भी टीचर्स होते हैं तो जरूर अपना टीचिंग लेवल आगे जाएगा. Right. Thank you so much. थँक्यू सो मच मॅम. मॅम नेक्स्ट टाइम तुम्ही नक्कीच ट्राय केला तर टीचर टॉक वर पोस्ट करा तुम्ही जे काही एक्सपेरिमेंट्स ट्राय Yes, sure, करतायत, म्हणजे बाकी सगळ्या टीचरांपर्यंतही तुम्ही हे पोहोचवू शकाल. Definitely, ma'am. Definitely. Yeah. थँक्यू सो मच. स्वीटी जी, how to download certificate from the app? आपको व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिल जाएगा विद द इंस्ट्रक्शन कैसे डाउनलोड करना सर्टिफिकेट को. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू व्हेरी मच. लीव झालं तर चालेल ना? येस सर, नक्कीच शुअर. थँक्यू सो मच. येस, फार छान फीडबॅक मिळाला आणि सगळ्यांचे फीडबॅक वगैरे ऐकून फार चांगलं. आता रात्री फार छान झोप लागेल. धन्यवाद. दळवी थँक्यू सो मच. फाउंडेशन. एक मिनट, लक्ष्मी इनका बाद में पोस्टल एड्रेस देना शिवाजी सर का, है ना? हाँ. ओके. थैंक यू. बाय. ओके. बाय. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. बाय. थैंक यू सर.